Good evening, students. Professors are back again to discuss the JEE Advanced 2026 Physics Paper 2, question number 3 and 4. Okay. Okay. So let us see the question number 3. What is the question number 3? This beam of polychromatic, matlab it is not a single wavelength, a mixed wavelength in inlet light is incident on a thin prism whose prism angle is A, 6 degree. N is its refractive index. Okay. So as you all know from Cauchy's formula, N is a function of lambda as given in your question as lambda N is equal to alpha lambda plus beta by lambda. So it is a function of lambda. Okay. So as lambda changes, the refractive index also for that particular wavelength will change. Material may remain same, but refractive index will change based on the lambda of the light passing through it. Alpha value is given 3 per micron and beta is given 0.096 micron square. It is given like this. So I wrote in terms of the meter and meter square SI units. Okay. So all of you must be knowing what the D angle of deviation for a thin prism. Here I want to tell you the D for a thin prism A is not very, it is almost very small, 5 degree almost should be, okay, 6 degree. Then the deviation and minimum deviation, the difference is very insignificant. So the deviation and minimum deviation almost we take them equal. So in that case, the for thin prism, the deviation or the minimum deviation for a particular wavelength will be given as dn n minus 1 into A. N is this minus 1 into A. Okay. dm is also a function of lambda. If n is a function of lambda, so also dm. तो पूछ रहा आपको what is asking you if lambda mean at a particular lambda the wavelength at which the angle of minimum deviation dm is smallest. So as you go on varying lambda, so dm value will go on changing. So smallest value of dm how much and what lambda that smallest value of dm occurs and what is the smallest value of dm, that is the question. So if dm is a function of lambda, then the maxima minima problem. Just take the derivative of dm at lambda is equal to lambda mean as per the question that he is saying that wavelength as lambda mean. What is that meaning of the lambda mean? At that wavelength, the smallest value of dm happens. Okay, right? So lambda is equal to dm by d of d lambda by d lambda of dm. उसका डेरिवेटिव ले लो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा by lambda cube 10. So that is the derivative of single derivative of dm with respect to lambda. So for a maxima minima, for extremum value that should be equated to 0. So lambda is 2 beta by alpha to the power 1 by 2. Yes or no? ये at this lambda, so capital dm is maximum or minimum? तो मैंने second derivative check कर रहा हूँ. Once I take the second derivative is always positive. That means whatever I am getting at this lambda, whatever dm I will be getting, that is the minimum. But lambda is equal to 2 beta by alpha to the power 1/3. dm will be minimum of minimum value. इसी को फाइंड करना. सो डीएम मीन जो मीन है उसको फाइंड करना. तो उसके लिए लैम्ब्डा शुड बी लैम्ब्डा मीन दैट फॉर दिस लैम्ब्डा I have to use. So that's it.
ये लैम्ब्डा को लैम्ब्डा मीन ही बोलते हैं as per the book, as per the question he saying that the lambda be noted as lambda mean. Okay, then what is lambda mean? 2 beta by alpha to the power 1 by 3. So 2 ये बीटा का वैल्यू, ये अल्फा का वैल्यू इंटू टू द पावर 1 by 3. सो ये हो जाएगा 10 to the power -18 आ जाएगा, तो -6 1/3 करने से, और ये हो जाएगा आपका 0.064 to the power 1/3 मीन्स 0.4. So 0.4 micron. So lambda meaning the lambda at which I get the minimum or smallest value of dm, that lambda will be 0.4 micron or 400 nanometer you can say. Visible range में रहेगा. Okay, so what is the value of the at this lambda, whatever the d, that is d minimum, whatever the dm at this for this lambda, that is the dm shortest, dm minimum. So यूज कर दो, dm का तो एक्सप्रेशन दिया हुआ भाई, उसका मिनिमम के लिए लैम्ब्डा शुड बी लैम्ब्डा मीन, जो whatever I found out. So dm minimum will be alpha lambda mean plus beta by lambda mean square minus 1 into a. तो वैल्यू पुट कर दो बस, लैम्ब्डा मीन 0.4 10 minus 6, ये हो जाएगा 1.2, बीटा बाय लैम्ब्डा मीन स्क्वायर -12, ये -12 आ जाएगा, लैम्ब्डा मीन स्क्वायर और 0.16 10 minus 12 कर जाएगा, ये हो जाएगा 0.16, सो ये हो जाएगा 0.6. So 1.2 plus 0.6 minus 1, that is 0.8. 0.8 into 6 degree, 4.8 degree. So ये हो गया ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आपका करेक्ट चॉइस है. ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल था. प्रोवाइडेड यू नो the deviation, so the minimum for a thin prism deviation 10 minus 1 into a. For non-thin prisms, it is, we have found out mu is equal to sin a plus dm by a plus d by 2 divided by sin a by 2, है ना. And make sines are equal to that respect theta if the angles are small, then you get this. This is only for thin prism. So let me write, this is only for thin prism. Okay. चलो फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4. तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? A particle of mass m, ये जो पार्टिकल है बाबू, ये मास m, it is an angular momentum L, angular मोमेंटम L, है ना. तो ऐसा घूम रहा इन सर्कुलर पाथ अंडर एन अट्रैक्टिव फोर्स. कोई एक एजेंसी है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स डाल रहा टुवर्ड सेंटर. सो दैट इज that f bar is given as, and the question given as k by r square minus r cap direction, मतलब इनवर्ड, जो मैं फोर्स डायरेक्शन देखा इनवर्ड. और रेडियस को एक स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक gmm by r square, kq by r square, so like this. So it is स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा, so r नॉट करो स्टेबल ऑर्बिट, so it will move in the stable orbit, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये क्वेश्चन में झमेला कर, keeping the angular momentum unchanged, keeping the angular momentum constant, L का constant रख के, L का वैल्यू constant रख के पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया along the radius. अभी क्या है, in the steady condition is moving on the circular track, not having any motion along the radial direction. Yes or no? तो आप आके क्या कर दिए, उसको थोड़ा सा उसके साथ झमेला कर दिया, थोड़ा सा एक रेडियल डायरेक्शन में कोई मोशन आपने इंड्यूस कर दिया, थोड़ा सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया रेडियल के सामने. सो उसके बाद घर बैठ गया है. तो क्या होगा उसके बाद? वो पूछता है स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर लिखा, मैं उसको एक्स लूंगा क्योंकि डेल्टा आर थोड़ा सिंबलिकली इट विल not look very comfortable. x ले लो, उसको x को डेल्टा आर मान.
ड्यू टू व्हिच रेडियल डिस्टेंस वेरीज पीरियडिकली। वो बोलता है कि जो ऐसा थोड़ा सा शिफ्ट करके छोड़ दिया तो वो ऐसे घूमता रहेगा, लेकिन रेडियली ऐसा ऐसा करके घूमता रहेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मोशन में रेडियली थोड़ा ऑसिलेटरी मोशन रहेगा, लेकिन घूमता तो रहेगा पाथ में जब तक तो स्टेबल में स्टेबिलिटी है उसमें। ठीक है, तो पूछता है वो जो टाइम पीरियड क्या होगा जो रेडियल डायरेक्शन में जो ऑसिलेट करते रहेगा वो, उसका टाइम पीरियड क्या होगा पूछता है। At the steady state revolution along a circle, f bar is k by r naught square, इसको r naught ले लो, डायरेक्शन माइनस r कैप दे दिया, दैट इज m ओमेगा नॉट स्क्वायर r कैप, ये ओमेगा नॉट में जा रहा करके मैं दे रहा हूं। ठीक है भाई, ओमेगा नॉट में क्या प्रॉब्लम है? ओमेगा right now on the circular track it is omega naught. Okay, सर्कुलर ट्रैक में जब तक है विदाउट डिस्टर्बेंस ओमेगा नॉट, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया तो कोई भी पर्टिकुलर आर में उसका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर विल बी ओमेगा। ओमेगा किसका किसका ओमेगा रे भाई? हाँ, मैं बहुत पढ़ाई है मेरा प्रीवियस लेक्चर में है ये सब, ओमेगा ऑफ द रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक, ये आ गया आपका k by r नॉट स्क्वायर माइनस r क्या, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर r। तो कौन सा डायरेक्शन? माइनस r क्या, तो इसे कैंसिल कर देंगे तो k by r नॉट स्क्वायर आ जाएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर r। ठीक है, एक इक्वेशन में रख दिया, बाद में देखेंगे कहाँ यूज होगा ये, उसको बाद में। एंगुलर मोमेंटम अबाउट o कितना है? L बार इज m r स्क्वायर ओमेगा r m r square m r square into omega not actual in the steady condition, but at any other instant m r square omega, r is something other than r naught or omega is something other than omega naught, but as per the question that L has to remain constant, should not change, है ना? क्वेश्चन में दिया हुआ मैं क्या कर सकता हूँ, keeping the L bar constant, the particle is given a radial direction motion. Correct? That's what the question has given us. So, अगर आप कुछ रेडियली शिफ्ट कर दिया तो उसका रेडियल वेलोसिटी भी आ जाएगा और करस्पॉन्डिंग रेडियल एक्सीलरेशन भी आ जाएगा ड्यू टू वेरिएशन ऑफ दिया, क्योंकि आप एक इंपल्स रेडियल डायरेक्शन देके छोड़ दिया तो उसका रेडियल वेलोसिटी रेडियल एक्सीलरेशन दोनों ही आ जाएंगे। So radial velocity होगा dr bar by dt, radial acceleration d square r by dt square r cap. So this acceleration, the d square r by dt square r cap, that is due to the change of radial velocity, which is due to change of radius vector. This acceleration is in addition to, excuse me, this acceleration is in addition to already the centripetal acceleration हो रहा ना भाई, due to change of direction of velocity, वो तो रहेगा ही, बट ये ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल वेलोसिटी, ये जो एक्सीलरेशन वो भी उसके साथ साथ रहेगा। तो अभी रेडियल डायरेक्शन में दो एक्सीलरेशन आ गए, एक तो ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर कैप डायरेक्शन में, और एक अभी आपने जो झमेला किया उसके कारण डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर रेडियल आर कैप डायरेक्शन में, दोनों आ गए अभी। तो अभी नेट एक्सीलरेशन कितना होगा? टोटल एक्सीलरेशन d square r by dt square r cap plus omega square r minus r cap, यही है ना? बस माइनस आर कैप को बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर आर बाई डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस आर कैप बाहर ले लिया। ये एक्सीलरेशन आ गया ना रेडियल डायरेक्शन में, तो रेडियल फोर्स कितना है या क्वेश्चन में k by r square minus r कैप। तो न्यूटन लॉ के हिसाब से दिस फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, so k by r square minus r cap is m into this acceleration minus r cap। तो माइनस r कैप को निकाल के फेंको पहले, तो k by r square is m into minus d square r by dt square plus omega square r, क्या रे हो गया ना ये इक्वेशन 2। r is the radius at any instant, let it be r is equal to, यही आ गया हमारा क्रिटिकल थिंग, r is r naught plus x,
तो क्वेश्चन में डेल्टा आर लिखा एक्स की जगह, चलो कोई नहीं है। एक्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्स इज मच 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 लेस देन आर नॉट। अगर आर नॉट 1 मीटर है, एक्स में भी 1 मिलीमीटर, समथिंग लाइक दैट। तो जहां पर आर है उसका आर नॉट प्लस एक्स में लिख दिया इधर। ये तो आर डी आर बाई डी टी विल बी आर नॉट अ कांस्टेंट, डी आर बाई डी एक्स बाई डी टी, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, वो भी लिख दिया, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस दिस डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, माइनस साइन तो इसे रहा। एंड ओमेगा स्क्वायर आर को ओमेगा स्क्वायर आर नॉट प्लस एक्स कर दिया। और ये जो ओमेगा नॉट ये नहीं है, ये ओमेगा है, क्योंकि अगर वो मैं उसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया, आर चेंज हुआ, ओमेगा भी चेंज होगा। आर बिकम्स आर नॉट प्लस एक्स, ओमेगा विल बिकम समथिंग अदर देन ओमेगा नॉट। वो भी निकालेंगे भाई कौन सा कितना है ये, ठीक है। अब तो फिलहाल रखो इसे। तो इसको थोड़ा सा आर नॉट को बाहर ले आओ स्क्वायर में, 1 प्लस एक्स बाई आर नॉट टू द पावर -2। ये तो आप मालूम होगा, इसको बाइनोमियल एक्सपांशन कर सकते हैं। एक्स बाय आर बहुत छोटा है तो बाइनोमियल एक्सपांशन कर सकते हैं एक्स बाय आर नॉट का। 1 प्लस एक्स बाय आर नॉट टू द पावर n, so 1 plus n time x by r naught, provided x by r naught is very very small compared to 1। तो ठीक है, उसमें हम कर दिया। फर्स्ट एक ही टर्म लिया, बाकी टर्म को तो हायर पावर x by r naught को नेगेट कर देते। x by r naught इज ए वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। ओके, ये तो ऐसे ही रहा, कोई ज्यादा चेंजेस कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं ओमेगा में फंसा हुआ हूँ। ओमेगा को लिखेंगे अभी ओमेगा नॉट के हिसाब से। So m r square omega, that is the angular momentum at any r and for any omega, is m r naught square omega naught is equal to n, क्योंकि ये तो दिया हुआ कि angular momentum को अनचेंज रहना चाहिए। तो ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा नॉट r naught square by r square, that is r naught square by r naught plus x whole square। ठीक है, अब ये ओमेगा इसी को हम लगाएंगे, ठीक है। लगाने से क्या होगा, k by r naught square 1 minus 2x by r is equal to m into minus d square x by dt square, no change, plus omega square की जगह omega naught square r naught to the power 4 r naught plus x to the power 4 into r naught plus x। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को मैं ऐसा लिखूं। तो लेफ्ट हैंड से हुई है एम, फर्स्ट टर्म हुई है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस साइन, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर आर नॉट 4 टू द पावर 4, ये आर नॉट को बाहर ले आए, आर नॉट टू द पावर ये सॉरी आर नॉट प्लस एक्स एंड आर नॉट प्लस एक्स टू द पावर 4 कर देने से आर नॉट प्लस एक्स टू द पावर 3 रहेगा। सो आर नॉट को बाहर लेने से आर नॉट टू द पावर 3 1 प्लस एक्स बाई आर नॉट टू द पावर -3। एक कैंसिल कर दो, ये आर नॉट प्लस एक्स और एक ये 3 कर दो, उसके बाद ऐसा लगा दो। ठीक है, जैसे इधर किया, उधर स्क्वायर था इधर क्यूब है। क्यूब क्यों है, क्योंकि एक न्यूमरेटर से आर नॉट प्लस एक्स इसको कैंसिल कर देगा, एक आर नॉट प्लस एक्स का जो टू द पावर 4 है, तो आ जाएगा, ये घट जाएगा, एक टू द पावर 3 हो जाएगा। तो आर नॉट को बाहर ले आओ, आर नॉट टू द पावर 3 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई आर नॉट टू द पावर -3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसे काटने के लिए मैं बता दूं, अभी उसको काट बैलेंस करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सो k by r naught square 1 minus 2x by r naught is equal to minus m is equal to m into minus d square x by dt square plus omega naught square r naught, खाली r naught रहेगा ना ये, हाँ 1, अभी मेरे को तसल्ली हुई, तो 1 प्लस -3x by r। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपांशन जो है, एक ही टर्म लिया, बाकी टर्म बहुत छोटे हैं, इग्नोर कर दो। सो k by r naught square ब्रैकेट खोल दिया, -2k x by r naught क्यूब, ये ब्रैकेट भी खोल दिया, माइनस m d स्क्वायर x by dt स्क्वायर प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर r naught -3m ओमेगा नॉट स्क्वायर r naught, ये r naught टर्म में कट जाएगा इधर सेकेंड टर्म में, सो -3m ओमेगा नॉट स्क्वायर x, ये आ जाएगा। ठीक है,
अभी देखो ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो टर्म है ये दोनों इक्वल है। कैसे? इक्वेशन 1 में मैंने लिखा ना के बाई आर नॉट स्क्वायर जो फोर्स था एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर नॉट। इक्वेशन नेक्स्ट में लिखा है ये, उसी को सेकंड दो बार लिख रहा हूँ। ठीक है, तो के बाई आर नॉट स्क्वायर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर नॉट, ये दोनों को मैं ये इक्वल टू में कैंसिल कर दूं तो क्या बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड माइनस 2 के बाई आर नॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। वाह, बहुत सिंपल सिंपल हो जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इक्वेशन 1 से सेम इक्वेशन 1 से ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 से के बाई आर नॉट को नीचे ले आओ, उसका के बाई आर नॉट क्यू इज एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये के बाई आर नॉट क्यू इज एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं माइनस 2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। कितना छोटा आ गया भाई, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये एसएचएम इक्वेशन आ गया भाई, आपको तो अच्छे से मालूम होगा ये एसएचएम इक्वेशन इन एक्स। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ आर, दैट इज आर नॉट। आर नॉट से एक्स है डिस्प्लेसमेंट, आउटवर्ड इनवर्ड बोथ। ओके, चलो ठीक है, तो यही तो हो गया एसएचएम। तो अभी व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑसिलेशन अलोंग रेडियस ओमेगा नॉट। Angular frequency of SHM of the particle along the radius is omega dash, नाम दे लिया उसको, that is same omega naught square का root over, that is same as angular velocity of the radius। angular velocity of radius vector लिखेंगे भाई, radius vector। मैं angular velocity of particle जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पार्टिकल जो पॉइंट पार्टिकल कभी भी रोटेट नहीं कर सकता, किसका भी एंगुलर वेलोसिटी नहीं होता। किसका एंगुलर वेलोसिटी होता, तो जो पॉइंट घूम रहा उसका जो पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर उसी का एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, आर द स्टेडी मोशन में जो भी एंगुलर वेलोसिटी था रेडियस वेक्टर का इन लूजली स्पीकिंग ऑफ द पार्टिकल का, सो दैट इज ओमेगा नॉट था, दैट इज सेम एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम ऑफ द पार्टिकल अलोंग द रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा डैश होना चाहिए, दैट इज सेम एज 2 पाई ओमेगा नॉट। लेकिन ये क्वेश्चन है ओमेगा नॉट के हिसाब से नहीं पूछा, तो के एल एम टर्म में पूछा बात। वही मैं देख रहा हूँ 4 ऑप्शन है के एल एम टर्म। चलो भाई हम लोग ओमेगा नॉट को के एल एम टर्म में निकालेंगे। इक्वेशन 1 से क्या है, के बाई एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इज आर नॉट क्यू, है ना। इक्वेशन 4 में क्या है, एंगुलर मोमेंटम वाला इक्वेशन जो है इक्वेशन 4, ये L इज इक्वल टू एम आर नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट, L इज इक्वल टू एम आर नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट, सो आर नॉट स्क्वायर विल बी L बाई एम ओमेगा नॉट। मेरे को ये आर नॉट नहीं चाहिए, ओमेगा नॉट आई वांट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ के एल एम, सही है ना। ठीक है, उसको स्क्वायर कर, उसको क्यूब करके इक्वेट कर, उसको स्क्वायर कर दिया, उसको क्यूब कर दिया, इक्वेट कर दिया। ये आर नॉट टू पावर 6, ये भी आर नॉट टू पावर 6 इक्वेट हो गए। उसमें क्या आया, के स्क्वायर बाई एल क्यूब इज इक्वल टू एम स्क्वायर ओमेगा नॉट फोर्थ इधर आया डिवाइडेड बाई एम क्यूब ओमेगा नॉट क्यूब, ओमेगा नॉट बाई ए। सो व्हाट इज ओमेगा नॉट, एम के स्क्वायर बाई एल क्यूब, दैट्स सेम एज ओमेगा डैश, ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड।
So t कितना होगा 2 pi by omega dash और 2 pi by omega naught आज 2 pi by this 2 pi L cube by m k square खत्म. ओके आप पूछ सकते थे मैं क्यों भाई नहीं लिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मैं तो ग्राउंड से कर रहा हूँ, मेरे को कहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह नजर आएगा, है ना. आप बोलेंगे ये कैसे आप लिख दिया. अरे मैं उसको नहीं लिखता और रेडियली उसको मोशन नहीं देता तो ये टर्म आता ही नहीं. खाली यही आता एक्सीलरेशन, ठीक है ना. बट आप तो दिए ना मोशन, उसको डिस्क्रिप्शन किए रेडियस के डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन और एक टर्म आएगा ही. उसको क्या लिखा मैंने, टी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर लिखूंगा ना आर कैप डायरेक्शन में. अब बोले माइनस आर कैप नहीं, माइनस आर कैप भी हो सकता है, आर कैप होता है, आर कैप लिख दिया. ये माइनस आर कैप आई ऑलरेडी नो दिस सेंट्रीपेटल वन एंड द फोर्स माइनस आर कैप में दिया हुआ, तो मैं न्यूटन वन लगा दिया. माइनस आर कैप दोनों साइड से दिया, जो हुआ उसके बाद उसको निकाल के माइनस आर कैप को सो के बाय आर स्क्वायर इज एन ओमेगा स्क्वायर आर माइनस डी स्क्वायर आर बाई डी. खत्म. उसके बाद तो कुछ था ही नहीं. बाकी तो सब अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपांशन अप्रोक्सीमेशन, इक्वल एंगुलर मोमेंटम रिमेनिंग कंजर्व, उससे आ जाएगा आपका ओमेगा आर एंड ओमेगा नॉट आर नॉट, वो रिलेशनशिप आ जाएगा. तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा नॉट टर्म में लिखना, जो कि मैं लिखा इधर. उसके बाद तो पूरा एसएचएम इक्वेशन आ गया, है ना. के बाय आर नॉट स्क्वायर एंड एम ओमेगा नॉट के बाय आर नॉट स्क्वायर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर नॉट. ये इक्वेशन 1 से मैं सीधा दोनों देखा, दोनों इक्वली बिकॉज दिस इज दी एट स्टेडी कंडीशन. ये जो फोर्स है ये एक्सीलरेशन देता, तो ये दोनों को मैंने निकाल दिया. दे आर इक्वल. स्टेडी स्टेट दोनों टर्म इक्वल. तो दोनों टर्म इधर भी इक्वेशन में आए तो इक्वेट है तो निकाल दें, इक्वल है तो निकाल देंगे. तो बाकी रह गए बस इतना ही टर्म. बहुत सिंपल टर्म आ गया. इक्वेशन 1 से के बाई आर नॉट क्यूब एम ओमेगा स्क्वायर, तो इसको एम ओमेगा नॉट स्क्वायर कर दिया, तो ये तो सब ले आने से ये +3 -2 सो 1 ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स रह गया. बस हो गया इक्वेशन वैसे से, कोई चिंता की बात नहीं, है ना. तो उसके बाद तो देयर इज नथिंग टू वरी, है कि नहीं. ओमेगा यही मेरे हिसाब से यही खत्म करना चाहिए था. वो फालतू सा के एल एम टर्म उसको एक्सप्रेस किया. इम्पोर्टेंट है दैट भाई जो उसका जो ऑसिलेशन होगा, उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज सेम एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन दिस सर्कल. ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. उसके बाद ओमेगा नॉट को जस्ट में के एल एम टर्म में यूज किया. इक्वेशन 1 से फोर्स इक्वेशन जो है स्टेडी स्टेट फोर्स इक्वेशन, उसमें डी स्क्वायर बाय डी टर्म नहीं है, जो स्टेडी स्टेट फोर्स इक्वेशन एंड स्टेडी स्टेट एंगुलर मोमेंटम का जो इक्वेशन, ये दोनों को इक्वेट करके मैंने ओमेगा नॉट को एक्सप्रेस किया एम के एल टर्म. ओमेगा नॉट इज एम के स्क्वायर बाई एल क्यूब. एल इज एंगुलर मोमेंटम, रिमेंबर कोई लेंथ नहीं है, वो ऐसा एल टर्म स्मॉल एल लिया. Understood this? So thank you all. Then I'll go for the next pair of questions. Don't worry. Okay. There are some. I'll go for the critical questions. Maybe some paragraphs and all this where people are doing in there only, but we'll do in a much more logical. Okay, because there is something to be discussed. Thank you all. I hope you have understood and enjoyed this discussion. Thank you all.